Hello students, welcome to my channel. In this video we will discuss about cell structure and cell function. So let's start our topic with cell theory. As you all know, there are three main points of cell theory which applies till today. All living things are made up of cells, which means that our body and the body of all other living organisms of five different kingdoms are made up of cells. Cells are the smallest working unit of all living things. It means that the cell has the capability to do all the functions, which means cell is capable of doing metabolism, cell is capable of doing producing energy, cell is capable of exchanging material, cell is responsible for intracellular extracellular modifications, capable of receiving signals. And the third point is that all cells come from pre-existing cell through cell division, which means that a new cell can only be formed by the replication of its ancestor cells. A cell gives rise to two cells through the process of mitosis. Next, in this we will discuss the basic definition cell. So we can define cell as the cell is the smallest unit that is capable of performing life function, which means consider the example of muscle cell. It can capable of doing all its duties. सेल्स की एग्जांपल्स आप लोगों के सामने हैं. सबसे पहले आपको अमेबा के सेल के दी हुई है कि अमेबा इज़ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म विच एंड इट्स ओरिजिन इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ ओनली वन सेल. इसका एक ही सेल इतना ताकतवर है कि इसके अंदर मेटाबॉलिज्म भी हो रही है, ये अपने इन्वायरमेंट के साथ रेगुलेट भी कर रहा है, इट इज़ कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन, ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्मिंग विद इन सेल्स, प्लांट स्टेम सेल्स, बैक्टीरियल सेल, नर्व सेल, रेड ब्लड सेल्स. We all know the function of these different type of cells. Plant stem cells are the cells which give rise to other plant cells which have potency to generate other types of plant cells. Nerve cells in our body, as you all know, is capable of conducting nerve impulses, transfer of information. Bacteria are the single cell prokaryotic organism. Red blood cells are capable of oxygenation of our blood tissues. So basically we classify cells into two main types. This classification of cell is on the basis of their organelles, on the basis of difference in the presence of nucleus, difference in presence of mitochondria, difference in the presence of chloroplast, difference in the presence of organelles, different and other different organelles. So basically we have two types of cells, prokaryotic and eukaryotic. Firstly we will discuss about prokaryotic cell. Prokaryotic cells do not have structure surrounded by membranes, which means they have less membrane structure in their anatomy. Few internal structure, which means that their internal composition is simplified. They are one-celled organism. Prokaryotes are basically included in kingdom Monera. In kingdom Monera, all the organisms are single-celled organism. All the cells have less membrane structures. And eukaryotic cell. Eukaryotes are basically divided and have many different types such as animal cell, plant cell, cells of protists, cell of fungi, contain organelles surrounded by membrane. इसका मतलब ये है कि जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर तो हमने कहा है कि ऑर्गेनेलिस नहीं होती, इसके अंदर ऑर्गेनेलिस होते हैं और ये ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और इनके अंदर मेम्ब्रेन्स भी हैं, जैसे कि आपके सामने इन्होंने में बनाया हुआ है एनिमल सेल और प्लांट सेल. एनिमल सेल की सिंपल डिस्क्रिप्शन दिखाई हुई है कि इसके अंदर वैक्यूल है, गोल्जी एपरेटस है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है. एनिमल सेल में भी कोरस्पॉन्डिंग साइटोस्केलेटन है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, गोल्जी एपरेटस, सेल न्यूक्लियस, सेंट्रियोल्स. इन दोनों सेल्स में बहुत सी सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं, ऑल्दो दे हैव सम डिफरेंसेस.
अब आप यहाँ पे पीछे कंपैरिजन करें प्रोकैरियोटिक सेल्स का, तो प्रोकैरियोटिक सेल में इतनी ऑर्गेनेलिस नहीं है। इसके अंदर न्यूक्लियोलस है, इसके अंदर और राइबोसोम है। इसके अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम ये सब नज़र नहीं आएगा। टिपिकल एनिमल सेल, जी इन्होंने एनिमल सेल्स को एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ईटीसी। अब ये एनिमल सेल के बताया हुआ है कि एनिमल सेल की शेप राउंड नहीं है, इसकी शेप क्यूबॉइडल है, जिसमें सेंटर में हमारे पास वैक्यूल है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर, एट द एजेस। क्लोरोप्लास्ट इज मेनली present because it has to undergo the process of photosynthesis. राइबोसोम्स दिखाए हुए हैं, गोल्जी अपरेटस है, राइबोसोम, न्यूक्लियोलस। आफ्टर डिस्कसिंग द मेन टाइप ऑफ सेल वी विल डिस्कस अबाउट सेल पार्ट्स। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मिलके सेल को बना रही हैं, सेल की ऑर्गेनेलिस। आखिर एक सेल के अंदर मुख्तलिफ काम हो रहे हैं, तो हाउ दिस फंक्शन इज़ रेगुलेटेड। सराउंडिंग ऑफ द सेल विच मीन सेल मेम्ब्रेन। सेल का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बगैर सेल का तस्वुर ही नहीं है। सेल मेम्ब्रेन इज़ बेसिकली आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल डैट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द सेल इन एंड आउट। डबल लेयर होती है, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर होती है जिसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। रेगुलेशन भी हो सकती है। इट प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं कि ये सेल को बेसिकली प्रोटेक्शन दे रही है, सेल रेगुलेशन कर रही है, फॉस्फोलिपिड से मिलके बनी हुई है। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एक्सोसाइटोसिस हो सकती है, एपिनोसाइटोसिस हो सकती है, फैगोसाइटोसिस हो सकती है। अब ये सेल वॉल है, ये मेन कंपोनेंट एनिमल सेल का नहीं है, प्लांट सेल का है। प्लांट सेल में लाजमी सेल वॉल प्रेजेंट होगी। अब मोस्ट कॉमनली फाउंड इन प्लांट सेल एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरियल सेल और प्लांट सेल में ये पाई जाती है। इट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट सेल, ये सेल को स्पेसिफिक शेप देती है। आपने पीछे एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंस देखा है उनकी शेप्स में। उनकी शेप में जो डिफरेंस है वो सेल मेम्ब्रेन की वजह से नहीं है, वो सेल वॉल की वजह से है। इनसाइड द सेल, अब ये थी सेल की बाउंड्री जिसमें सेल मेम्ब्रेन हर ऑर्गेनिज्म में है, और सेल वॉल डिफरेंस पता लग गया कि वो प्लांट्स में है, एनिमल में नहीं है। न्यूक्लियस डायरेक्ट सेल एक्टिविटीज़ यानी कि हम कहें कि कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल इज इट्स न्यूक्लियस। सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है विच कैन आइदर बी डीएनए और आरएनए विच कंट्रोल आवर हेरिडिटी, विच ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम प्रोजेनी ड्यू टू दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब यहाँ पीछे लिखा हुआ है कि सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, उसकी अपनी एक मेम्ब्रेन है जो कि साइटोप्लाज्म से उसे डिफरेंट करती है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड न्यूक्लियस मेड अप ऑफ 2 लेयर्स। ओपनिंग अलाउ मटेरियल टू एंटर एंड लीव द न्यूक्लियस। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस में ये स्मॉल न्यूक्लियर पोर्स दिखाए हुए हैं। न्यूक्लियर पोर्स की वजह से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, यानी कि कुछ प्रोटीन्स ने या राइबोसोम ने अगर न्यूक्लियस के अंदर ट्रैवल करके जाना है, या फिर न्यूक्लियस में राइबोसोम बन रहा है, उसने न्यूक्लियस से बाहर आके साइटोप्लाज्म में अपना फंक्शन परफॉर्म करना है, तो उनकी ये ट्रैवलिंग, उनका ये ट्रांसपोर्ट थ्रू न्यूक्लियर पोर होता है। क्रोमोसोम। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन विच कंटेन इंस्ट्रक्शन फॉर ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन है, कंडेंस्ड नेटवर्क ऑफ क्रोमोसोम एंड प्रोटीन, एंड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज अ साइट वेयर राइबोसोम सिंथेसिस अकर, कंटेन आरएनए टू बिल्ड प्रोटीन्स। ठीक है। Cytoplasm is a gel-like mixture. It is basically the surface of the cell, surrounded by cell membrane, contain hereditary material. जैसे आपने देखा है कि प्रोकैरियोटिक सेल है,
उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, उसका क्रोमेटिन उसके साइटोप्लाज्म में है, न्यूक्लियोइड जिसे हम कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म के अंदर भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन हो गया, और जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे यूकैरियोटिक, उनके न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज़ एन ऑर्गेनेली ऑफ द सेल। इट इज़ बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। अगर मैं आपको इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूँ कि इट मे बी आइदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. There are two types is basically on the presence and absence of ribosome. If ribosomes is attached, it is rough endoplasmic. If it is not attached to surface, it is smooth. अब यहाँ पे जनरल फंक्शन दिया हुआ है कि मूव्स मटेरियल अराउंड इन सेल, यानी कि सेल के अंदर मूवमेंट ऑफ मटेरियल के लिए हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहिए। स्मूथ टाइप होती है और रफ टाइप। स्मूथ टाइप में क्या होता है, राइबोसोम नहीं होते। अब ये आपके सामने जो पिक्चर बनी हुई, इसमें स्मॉल स्मॉल ब्लैक कलर के डॉट हैं, ये आपके सामने राइबोसोम है ER के साथ अटैच। तो ये RER की पिक्चर आपके सामने बनी हुई है। अब ये सेकेंड ऑर्गेनेली है राइबोसोम। राइबोसोम क्या होते हैं? राइबोसोम को बेसिकली हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ईच सेल कंटेन थाउजेंड्स, हमारे हर सेल के अंदर थाउजेंड्स ऑफ राइबोसोम्स हैं। कंटिन्यूस सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन हो रही है। राइबोसोम का फंक्शन क्या है कि इसने मैसेंजर RNA की रीडिंग करनी है, अमाइनो एसिड ने यहाँ पे अटैच होना है और पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। मेक प्रोटीन फाउंड ऑन राइबोसोम्स, यानी कि राइबोसोम जो हैं या तो ER के साथ अटैच होंगे या फिर फ्रीली फ्लोटिंग इन आवर बॉडी, इन आवर सेल में ये फ्रीली फ्लोटिंग भी हो सकते हैं, मतलब ये इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं सेल में, और ये उधर अटैच भी हो सकते हैं ER के साथ। इसके बाद हमें बताई हुई अगली ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप ये सुन लें कि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में, प्लांट सेल में, यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी एंड केमिकल रिएक्शन। सेल की मेटाबॉलिज्म माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। बेसिकली यहाँ पे फैट की ब्रेक डाउन होती है, ग्लाइकोलिसिस के बाद कार्ब साइकिल और इस तरह के सारे प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे लिए बॉडी के लिए एनर्जी करेंसी यानी ATP को बनाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली कंट्रोल द लेवल ऑफ वाटर एंड अदर मटेरियल इन द सेल। इट इज़ इट्स सेकेंडरी फंक्शन रिसाइकल एंड डिकम्पोजिस प्रोटीन, फैट्स एंड कार्ब्स। ये रिसाइकल करता है प्रोटीन को, फैट्स को और कार्ब्स को। अब गोल्जी बॉडीज़ को हम गोल्जी अपरेटस भी कहते हैं, इसको गोल्जी बॉडीज़ भी कहा जाता है। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं। इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन सेल सिक्रेशंस विच मीन्स दैट प्रोटीन पैकेजिंग इसका मेन फंक्शन है। सेल की जो प्रोटीन है वो सबसे पहले न्यूक्लियस से आई राइबोसोम में, ER के बाद ये गोल्जी के पास जाती हैं, और गोल्जी इज़ बेसिकली इन्वॉल्व्ड इन द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। इसके बाद लाइसोसोम्स आर द डाइजेस्टिव प्लांट्स फॉर प्रोटीन, फैट्स एंड कार्ब्स। लाइसोसोम हमारी बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं कि ये ट्रांसपोर्ट करते हैं अनडाइजेस्टेड मटेरियल टू सेल मेम्ब्रेन फॉर रिमूवल। कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो गया, हमारे सेल में एंटर हो गया, उसको सबसे पहले जो इनगल्फ करेगा वो लाइसोसोम होगा। लाइसोसोम इसी तरह अगर सेल के अंदर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है जो हार्मफुल है, कोई भी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, उसकी रिमूवल में भी लाइसोसोम इन्वॉल्व है। सेल ब्रेक डाउन इफ लाइसोसोम एक्सप्लोर्स, मतलब कि अगर लाइसोसोम हट जाए सेल के अंदर तो सेल ब्रेक हो जाए। वैक्यूल इज़ अ मेन करेक्टर ऑफ प्लांट सेल के अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज। इसका मेन फंक्शन है चीज़ों को स्टोर करना। वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। इट कैन बी आइदर यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ वाटर, स्टोरेज ऑफ वेस्ट, बोथ फंक्शन इट कैन परफॉर्म। हेल्प
plants to maintain its shape. जो प्लांट का सेंट्रल वैक्यूल और सेल वॉल, these two helps in plant cells to maintain its shapes. Chloroplast is a double membrane bounded organelle usually found in plant cells, contain green chlorophyll. क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है और प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा होता है. Today this our basic concept about cell and the basic organelles and their basic function we have studied in this lecture. Thank you very much.